So good morning, friends. Good morning, sir. Good morning. Very good morning, sir. Yes. So last day हमने बहुत ही एक important chapter start किया था, and it's all about life, right? So there is a saying, where your focus goes, energy flows, and where your energy flows, results flows, right? So whatever you are doing in any areas of your life, be it health, wealth, relationship, anything, any area, the focus is very much required. And when we say focus, it is focus on consciously until success. And that's where people lack. People want lot many things. They want results. For that, at their own way, they are taking actions also. But somehow they lack with energy. They lack with focus. And because of that, unknowingly, unconsciously, they are not in track. I want to achieve this. I want to achieve that. But the kind of energy and the kind of focus is required, it is not there. And if it is not there, you be rest assured that you are not on track. The action, what you are taking, are not sufficient. The action, what you are taking, are not sufficient enough to produce the desired result. So last day we discussed what actually we need. First of all, we need to be clear with our goal. And when we say clear, it means what you want to achieve, why you want to achieve. At present, in any area of your goal, wherever you are, that is your point A. And the goal, what you are setting for yourself, that is the point B, where you want to actually achieve, right? Where you want to reach. So that is your point. Now, when what and why is clear, you need to work on your how. How you are going to achieve your point B in your life. So that's where come the role of plan and strategy. When plan and strategies are in place, means to say the entire roadmap is ready. Start taking action on that. Because no action, no results. And when you will start taking actions, you'll get the result. That leads to success. That you can consider that is a success for you. But result and the desired result, there is a difference, correct? If you really want the desired result, what you'll have to put in between your plan and the action is, the first thing, it is intention. Your intention should be very much positive and aligned to your goal. So you should be like 100% confirm. आपका अगर इंटेंशन सही नहीं है, गड़बड़ नहीं है, इन प्लेस नहीं है, then there are chances कि चीजें इधर उधर होंगी. So come up with your intention. What is your intention? आप ये अचीव करना चाहते हो, उसके पीछे क्या है आपके? नियत हिंदी में बोलते हैं नियत. आपकी नियत क्या है? आपकी मनसा क्या है? ठीक है?
एंड इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव ओनली। अगर कोई गोल ऐसा है उसके पीछे कोई नेगेटिव इंटेंशन है, नेगेटिव मनसा है, देन डेफिनेटली देयर विल बी ए गैप एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है आपको साथ नहीं देगा। आप हाथ उठा रहे प्रसन्ना जी, कुछ पूछना है आपको यहाँ पे या नहीं? ओके, गॉट इट। सो intention is very much required, and when intention is clear, you need to focus on the goal. Focus, that too consciously focus means you need to be mindful about each and everything. Whatever you are doing in the process, you should be mindful about it, you should be conscious about it, and that's how you will be in the mode, in the track, and you will be high on energy all the time. अगर कोई भी आप एक्शन ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूं, you will find yourself the energy is not that high जो होना चाहिए. So first thing, your intention. The second thing is your mindfulness. You should be mindful enough, means you should be conscious, you should be focused. And if these two things will be in place, believe me, the energy will always be on high side. And after that, जब आप एक्शन लेंगे तो डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा. मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हुए आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि आपका एक एन गोल है, पॉइंट बी है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, और उसको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से एक्शन भी ले रहे हैं. बट क्या वो जो एक्शन ले रहे हैं वो एनफ है? क्या वो जो आप एक्शन ले रहे हैं उसमें फिर कहाँ गैप हो रहा है? आर यू एबल टू कनेक्ट विथ दीज थिंग्स? शायद फोकस में कमी हो रही है, शायद कॉन्शियसनेस नहीं है. दिन भर जो एक्टिविटी है हम एकदम से माइंडफुल होकर नहीं कर पाते हैं. शायद से जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस थिंग, अपने एक्शन में एनर्जी की कमी है. आर यू एबल टू रिलेट? आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज से? एंड दैट्स द रीजन, जो एक्शन होने चाहिए वो एक्शन नहीं हो पाते हैं, तो डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता. यस रामाकृष्ण जी, आप अनम्यूट किए थे, कुछ बोलना चाह रहे हैं? Yes, you are right. Focus is there, but action is to be improved for me. करेक्ट. सो फोकस से पहले इंटेंशन जरूरी है. इंटेंशन को थोड़ा सा और, मतलब वो बोलते हैं ना मुहर लगाने वाली बात, उस पे आप काम कीजिए. आपकी नियत क्या है, आपकी मनसा क्या है, ठीक है? एंड जब नियत आपका साफ होगा, फोकस आएगा, ठीक है, कॉन्शियसनेस आएगा, एंड फोकस जब आ जाएगा तो डेफिनेटली यू विल बी हाई ऑन एनर्जी, एंड the action what you will take will be enough to achieve your desired result, and that's how you will become successful. Now हम बात कर रहे हैं फोकस की, हम बात कर रहे हैं इंटेंशन का, हम बात कर रहे हैं कॉन्शियस होने का, हम बात कर रहे हैं हाई ऑन एनर्जी का. तो वेल्थ मास्टरी क्लब है, फिलहाल हम लोग लाइफ के अदर एरियाज के बारे में बात नहीं करेंगे. एंड यही फोकस और आपका इंटेंशन क्या है, इसको ही समझने के लिए लास्ट डे हमने जो असाइनमेंट दिया था उस पर काम करने के लिए बोला था, ठीक है? तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने काम किया है, एंड हाँ, वो मैं देख नहीं पाया हूँ बिकॉज आप लोगों ने शेयर नहीं किया. जो रामकृष्णन जी, द फ्रेश वर्जन ऑफ इट, वेदर यू हैव मेड इट और नॉट. सो अगर मेरे साथ शेयर करेंगे, 1-to-1 कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, आप लोग वो करिए. सो जहां पे हम बात कर रहे थे, व्हाट इज द करंट नेट
टेक होम पर्सनल इनकम पर मंथ ऑफ द बिजनेस? अभी लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, क्वेश्चन देके छोड़ दिया था, मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ सो दैट आप मेरे से शेयर करने से पहले अगर कुछ रेक्टिफाई करना होगा तो कर लीजिए। आज के डेट में आपका इनकम क्या है, नेट पर्सनल इनकम, हाउ हैप्पी यू आर विद द करंट लेवल ऑफ इनकम आउट। अभी जो आपका नेट इनकम हो रहा है ये कितना इससे हैप्पी है? यू नीड टू रेट योर सेल्फ। सो 10 इज द हाइएस्ट, इट मीन्स यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, आप अपने इनकम से खुश हैं। अगर खुश नहीं है तो एकदम भी खुश नहीं है क्या, तो यू कैन रेट योर सेल्फ 1। अगर बीच में कहीं पे है तो यू कैन रेट योर सेल्फ 4, 5, 6, 7 लाइक दैट। तो एनीवेयर बिटवीन 7 एंड अबव इट्स ए गुड। ठीक है, बट देयर इज ऑलवेज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं ना, सो आप डेफिनेटली 10 करना चाहेंगे। सो इट्स लाइक दैट। सो यू जस्ट रेट योरसेल्फ कि आज के डेट में आपके करंट पर्सनल नेट इनकम से आप कितने खुश हैं, तो यू नीड टू रेट योरसेल्फ। सेकंड, डू यू थिंक यू डिजर्व टू अर्न मोर इनकम? क्या आपको लगता है यू डिजर्व मोर? डिजर्व मीन्स डिजर्व, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं ज्यादा कमाने? ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख कमाते हैं और आपको लगता है कि आपको 5 लाख कमाना चाहिए महीने का, या आपको लगता है कि 10 लाख कमाना चाहिए, तो हियर द क्वेश्चन इज, डू यू रियली फील यू डिजर्व टू अर्न मोर? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ इफ यू से if yes, how much net income per month you think you can start earning 1 year from now which can make you happy and feel good? अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा डिजर्व करते हैं, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, है ना? सो अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा डिजर्व करते हैं, तो आज से 1 साल के बाद आपका क्या इनकम होना चाहिए जिससे कि आप खुश फील कर, आपको खुशी होगी, आप अच्छा फील करेंगे। नाउ इफ यस, उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूअस है ना, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। डू यू थिंक यू डिजर्व टू अर्न मोर? सो इफ यस, मेंशन द 3 रीजन व्हाई यू थिंक यू डिजर्व टू अर्न द अबव इनकम। अभी आप बोलेंगे कि हाँ मैं तो ज्यादा डिजर्व करता हूं, तो इफ यू आर सेइंग यस, जस्टिफाई इट। Why you want? Give 3 reason, 3 strong reason that you deserve more. सिर्फ बोलने के लिए नहीं, तो you should have। और ये वार्तालाप जो हो रहा है, ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है, ये आपका आपके साथ हो रहा है। Nobody else is there. आप ही पूछ रहे हो अपने आप को और आपको ही जवाब देना है। It's like you are talking to yourself. If yes, mention the 3 reasons why you think you deserve to earn the above income. ये जो इनकम की बात कर रहे हैं 1 साल बाद जो आप चाह रहे हैं, ये होना चाहिए। ऐसे वो कौन से 3 रीजन है जिसके चलते आपको लगता है कि ये इनकम आपका होना चाहिए? Why is this magic income number, next question, is so important or significant to you? What would you gain by achieving this goal? Describe how it will make a difference in your current lifestyle and how it will benefit for the future. So ये जो मैजिक नंबर है, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड क्यों इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है आपके लिए? मतलब एक बोलते हैं ना, वो वाली बात है, ऑनर वाली बात है, इज्जत वाली बात है, ये तो होना ही चाहिए। मतलब क्यों इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है? और अगर ये इंपॉर्टेंट है तो ये अचीव हो जाएगा, तो व्हाट ऑल गेन यू विल हैव इन योर लाइफ? व्हाट वुड यू गेन बाय अचीविंग दिस गोल? आपके करंट लाइफ स्टाइल में क्या फर्क आएगा और फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं, इसको डिटेल में लिखने का। ठीक है, अच्छा हो जाएगा, मेरा लाइफ स्टाइल सुधर जाएगा, ऐसा नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं। व्हाट एग्जैक्टली, गिव टाइम योरसेल्फ, ठीक है, गिव लॉट ऑफ टाइम टू योरसेल्फ।
अभी आपने किया है, कितना किया है वो तो देखने से मुझे पता लगेगा. द वे आई गिव इनपुट टू रामाकृष्णन जी, आई होप ही वर्कड ऑन इट. ठीक है. सो लाइक दैट मैं बाकी लोगों को भी बोलता हूँ कि आप इस पर काम करें एंड आप देखें कि क्या आपको गेन होने वाला है. इसको पूरा डिटेल में लिख दीजिए. आपको पूरा पेज भरना, पेज भर दीजिए, बिकॉज इट इज योर डॉक्यूमेंट. यू नीड टू बी दैट मच क्लियर. बाय द वे, जो मैंने बात की इंटेंशन की, मैं जो बात कर रहा हूँ फोकस होने की, कॉन्शियस होने की. सो जब आप ये इतनी सारी चीजें जब आप लिखोगे, यू विल बी मोर फोकस, यू विल बी मोर क्लियर अबाउट योर गोल. इट्स नॉट जस्ट ए असाइनमेंट, it's not just an exercise. It is all about focusing on your goal. आपका इंटेंशन क्या है, आपकी नियत क्या है. इस क्वेश्चन के पीछे वो है. ये वेल्थ मास्टरी क्लब का एक असाइनमेंट बस नहीं है कि बस लिखना है करके हम लिख रहे हैं. दिस इज योर डॉक्यूमेंट. अगर आपको लगता है कि एक बुकलेट बन सकता है तो लिख डालिए, एक बुक बना दीजिए. उससे वो फॉर्म आपका ये पता चलेगा कितने ज्यादा आप डिटरमाइंड है, कमिटेड है. ठीक है. वो सारी चीजें इस पे आएगी, आपका इंटेंशन वहां से पता लगेगा. राइट. सो दैट इज द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट, why you are not making the above income assumed today? Why didn't you achieve this goal already? What's stopping you? Write down all the possible reasons. अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डीप में जाने वाला ये क्वेश्चन है. अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आप बोलते हैं कि यू डिजर्व दिस मच ऑफ इनकम एंड दिस मच ऑफ इनकम, दिस गोल इज सो सिग्निफिकेंट टू यू, दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड यू आर सेइंग यू डिजर्व दिस, व्हाट योर इनकम इज, this is less, you deserve more, then अभी तक इसको अभी क्यों नहीं अचीव कर पाए? What are the reasons? What is stopping you? ठीक है. पूरा डिटेल में लिखने का है, पूरा डिटेल में लिखने का है. जस्ट गिव योर टाइम. मैं बता रहा हूं, आप 3 घंटा टाइम ले लीजिए. आप बोल दीजिए लोगों को, दरवाजे में अपने आप को लॉक कर लीजिए और बोलिए कि मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मुझे अपने साथ बैठना है. एंड जो भी थॉट्स, जो भी फीलिंग्स, कुछ जो भी आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में, उनको लिखते जाइए. ठीक है. मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज. ठीक है. एंड दिस इज फॉर यू, दिस इज योर लाइफ. ठीक है. सो दैट्स द रीजन. Write down all the possible reasons. Now, आप बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिग्निफिकेंट है और मैं डिजर्व भी करता हूं, लेकिन नहीं हो पाया ड्यू टू XYZ रीजन. यहाँ पे रीजन्स आ जाएंगे, बहुत सारे रीजन्स आ सकते हैं. मे बी लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ एक्शंस, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना. आउट ऑफ फियर यू डोंट टेक एक्शन, ऑल ब्ला ब्ला. ठीक है. वो सारी चीजें आएंगी. पैसे की प्रॉब्लम, टाइम का प्रॉब्लम. ठीक है. और बहुत सारे जितने भी रीजन आ सकते थे आएंगे. सो बाय डूइंग सो, what you will have the access, you will have the access. It means your reasons are bigger than your goal, and that's where you'll have to access or accept. You'll have to shift your mind. No, my goal is bigger, I am bigger than my all these problems which stopped me in past, but अभी और नहीं, जो होना था हो गया. Now I am conscious, now I am focused about my. ये अवेयरनेस आएगा, ये अवेयरनेस आएगा. बिकॉज अंटिल आप अपने रीजंस को, अपने एक्सक्यूजेस को और उन सारी चीजों को बड़ा बनाते रहेंगे,
तब तक आप अपने गोल से दूर ही रहेंगे। आपको वो एनर्जी मिलेगी ही नहीं, आप वो एक्शन ले ही नहीं पाएंगे जो डिजायर्ड सक्सेस या डिजायर्ड रिजल्ट के लिए चाहिए। सो ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, राइट? सो यू नीड टू राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट, what is the price you are willing to pay to achieve the above income goal? What can you sacrifice or give back to the universe while achieving the goal or after the achievement of the goal? आप चाहते तो हैं ये सारी चीजें हो, बट उसके लिए आप क्या प्राइस पे कर सकते हैं? प्राइस का मतलब यहाँ पैसा नहीं है। प्राइस का मतलब यहाँ पैसा नहीं है। लेट मी टेल यू, प्राइस का मतलब यहाँ पे व्हाट इज यू आर पुटिंग ऑन द स्टेक। इट्स अ गेम, गेम इज ऑन टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर सक्सेस, ठीक है? और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको तो पाना ही है, बट देन व्हाट यू आर पुटिंग ऑन द स्टेक, योर टाइम, योर एफर्ट, योर एक्शंस, ठीक है? ये सारी चीजें, इन सब चीजों के ऊपर देयर शुड बी समथिंग बिग जिसको आपको दांव पे लगाना होगा। पुटिंग ऑन द स्टेक बोलने से उतना नहीं लगता है, मैं यहाँ पे बोलता हूं दांव पे क्या लगा रहे हैं आप। कुछ तो ऐसा बड़ा लगाना पड़ेगा जिस तभी आप जो है और ज्यादा कॉन्शियस होंगे और ज्यादा फोकस होंगे। जब तक कुछ स्टेक पे नहीं लगा है ना, आप सीरियस नहीं है। एंड स्टेक में लगने वाली बात, इसको थोड़ा सा और डीप जाना चाहूंगा। सो बेसिकली लाइफ तो चल रही है, आप अपने गोल को अचीव करें चाहे नहीं करें, लाइफ तो अपना चल रहा है ना, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सांस नहीं रुक रही है, ठीक है? आपको कोई गला नहीं दबा रहा है। लाइफ इज गुड, लाइफ इज कंफर्टेबल। वो जो आप चाह रहे हैं दैट इज ए विश, आप पाना चाहते हैं, बट नहीं पाए तो भी चलता है। और ये चलता है बिकॉज आप चला रहे। अगर नहीं चले, आपकी सांस रुकने लगे, तब देखिए आप क्या करेंगे। So you'll have to put something on a stake, something big, something bigger। बड़ा गेम, बड़ा रिजल्ट चाहिए, बड़ा सक्सेस चाहिए, तो कुछ बड़ा चीज दांव पे लगाना पड़ेगा। अभी आपने कुछ भी नहीं लगाया है तो आपको नहीं मिल रहा, जैसा चल रहा बाय डिफॉल्ट। सो इट इज ए डिफॉल्ट लाइफ। एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज कॉल्ड डिजाइन्ड लाइफ। ओके, सो इस डिजाइन लाइफ और डिफॉल्ट लाइफ में किसी और दिन हम बात करेंगे बहुत डिटेल पे। फिलहाल इस चीज को समझिए, यू नीड टू पुट समथिंग ऑन स्टेक। मैं एग्जांपल देता हूं छिछोरे मूवी का। छिछोरे मूवी आपने नहीं देखी है तो जरूर से देखिए, इट्स ए वंडरफुल मूवी, ठीक है? वहां पे एक फेल्योर टीम होती है और वो लोग जीत नहीं रहे होते हैं, तो हीरो जो है सबको एड्रेस करता है, सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज, वो बोलता है कि हम हार रहे हैं बिकॉज हमारी फट नहीं रही है, ठीक है? मतलब नथिंग वी आर लूजिंग, हम कुछ नहीं हो रहा, चलता है एटीट्यूड, ठीक है? तो वो फटना चाहिए, मतलब कुछ होना चाहिए। वो जब तक होगा नहीं होगा। हम कल भी फेल्योर थे, आज भी फेल्योर है, क्या फर्क पड़ता है लाइफ में? थोड़े टाइम के लिए बोलेंगे ये तो फेल्योर है, बट अदरवाइज इट्स ओके, लाइफ चल रहा है। सो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वहां पे डिसीजन लेते हैं कि बॉस कुछ जो है दांव पे लगाना पड़ेगा। एंड दांव पे क्या लगाते हैं? सो द हीरो, वो हीरोइन को प्यार करता है, वो बोलता है जब तक अपन जीतेंगे नहीं, हम अपनी हीरोइन से बात नहीं करेंगे, ठीक है? एक बंदा रहता है, ही वाज अ चेन स्मोकर, मतलब सिगरेट के बिना रह ही नहीं सकता, वो बोलता है मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। एक बंदा होता है, वो एकदम से अल्कोहलिक रहता है, उसको रोज चाहिए ही चाहिए, बट ही वाज अ वेरी गुड कैरम प्लेयर, वो बोलता है मैं दारू नहीं पिएगा। एक बंदा रहता है,
उसको हर बात में उसके मुंह से गाली निकलता है, तो ही वॉज लाइक दैट। तो वो बोलता है कि उसको दांव पे लगा, वो बोलता है कि मैं आज से स्लैंगी लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, ठीक है। सो इट इज जस्ट एग्जाम्पल। आप देखिए कि ऐसा क्या चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना, उसको दांव पे लगाइए। और बड़ा गेम खेल रहे तो कुछ बड़ा चीज दांव पे लगाइए, ठीक है। लास्टली, whom do you want to dedicate the achievement of the above goal and why? आप ये अचीवमेंट जो करना चाह रहे हैं, अच्छा हाँ, उससे पहले while doing so, what you want to give back to the society by achieving the goal or maybe during the process? इस दौरान आप सोसाइटी के लिए भी क्या करना चाहेंगे या चाह रहे हैं या करेंगे? एंड द लास्ट वन, ये अचीवमेंट आप किसको डेडिकेट करते हैं? भगवान को, अपने पेरेंट्स को, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों के नाम, किसी के नाम से तो कीजिए, ठीक है। एंड व्हाई यू वांट टू डेडिकेट दिस अचीवमेंट टू हिम और हर? उसका फोटो ले लीजिए, और ये जो बनाएंगे आपका डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, कम से कम नहीं भी तो 10-20 पेज का तो बनेगा, अगर आप कॉन्शियसली पूरा डिटेल में अगर करेंगे, बिलीव मी। तो वहां पे आप इनका एक फोटो भी लगा दीजिए, आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई दिस अचीवमेंट टू, नाम लिखिए, और वाई वो भी लिखिए, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, ये सारी चीजें, आई होप लास्ट डे का कन्वर्सेशन और आज के कन्वर्सेशन में आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। जिन्होंने काम किया है शायद उनको और काम करने की जरूरत है, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है उनको क्लैरिटी मिली होगी, तो डेफिनेटली करेंगे, राइट। हम लोग यहाँ से सेशन को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं। नाउ ये सारी चीजें मैं मान के चलता हूं आप कर लिए हैं, कर लेंगे। तो हाउ टू बी कॉन्शियस अबाउट योर इनकम गोल, ठीक है। सो दो चीजें हैं, हम लोग जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका अपना इम्पैक्ट है, लेकिन वो बोलते हैं ना, समथिंग व्हाट वी से दैट इज ऑल राइट, बट व्हेन वी राइट दिस, द सेम थिंग, सेम अफर्मेशन, सेम विजुअलाइजेशन, जब हम लिखते हैं तो इसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। सो दैट्स द रीजन what we need to do is we need to write our goal. We need to write our goal. This is very much required. So here मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, यहाँ पे मैं फिर से शेयर करता हूँ। What is the difference? Difference is very much clear. कामना मैम जो बोलती है ना, मैं तो विजुअलाइज नहीं कर पाती, वो तो कनेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। आप में से बाकी लोगों के साथ भी ये होता होगा, ये हर किसी के साथ अप्लाई होता है। सो व्हेन वी जस्ट रीड, व्हेन वी जस्ट से, तो एकदम से पूरा कनेक्शन नहीं होता है, कुछ धुंधला दिखता है, क्लैरिटी नहीं रहती है। तो द इम्पैक्ट ऑफ रीडिंग ये है। अगेन बार बार रिपीट करते हुए अगर करेंगे तो डेफिनेटली वो भी फिर क्लियर होता आएगा। मास्टरी चाहिए होती है, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है। बट व्हेन यू राइट समथिंग, आप करके देख लीजिए कोई भी चीज को, आप जब उस चीज को लिखते हैं तो आपके आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में इमेज क्रिएट होता है, आप वो बनने लगता है, इमेज क्लियर दिखने लगता है। आर यू एग्रीइंग टू इट? तब आप यस सर, यस सर। आप जब लिखते हैं आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ जाता है, यू आर मोर कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू राइट, ठीक है। सो दैट्स द रीजन आपका गोल जो है लिखना बहुत जरूरी है। तो लिखना, आप जो लिखोगे उसका मैं फॉर्मेट दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। पेन एंड पेपर है तो पेन एंड पेपर में लिख लीजिए, नहीं तो मोबाइल पे तो एटलीस्ट टाइप कर लीजिए, दैट वुड बी बेटर। सो व्हाट यू नीड टू राइट। एक्चुअली आप तो सर ग्राफोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं,
जी, लिखने का ब्रेन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। आप जो पढ़ने, कल आपने जो दिया था ना सर, वो डॉग का लिखने से क्या होता है और नहीं लिखे पढ़ने से क्या होता है, दैट वाज राइट, द बेस्ट एग्जांपल। वही तो एग्जैक्ट, दिखाया अभी। वही तो अभी मैंने शेयर किया ना स्क्रीन में, यस, डॉग को। हाँ हाँ, अभी तो शेयर किया ना। या सो आपको क्या लिखना है, माई इंस्पायरिंग इनकम गोल बाय, अभी आप आज से 9 मंथ बाद का या 1 साल बाद, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, का डेट आप डाल दीजिए। एंड उसके बाद आपको लिखना है, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड। आप लोग लिख रहे हैं? यस, रिपीट करिए। माय आप लोग लिख लीजिए, मैं आप लोगों से लिखवा रहा हूँ पर्पसफुली। I am happy and grateful. टू गॉड, सर आप फिर से शुरू से बोलिए। वन बोलिए। आपको टॉप में एवरीडे लिखना है। एक हाँ। नोटबुक ले लीजिएगा, उसमें एवरीडे आपको लिखना है, माई इंस्पायरिंग इनकम गोल बाय, एक डेट डालना है, आज से 9 महीने के बाद का या फिर 1 साल बाद का, उससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। ओके, देन आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स फॉर blessing and making me, I repeat, I am happy and grateful to God and universe for blessing and making me to deserve and earn my desired income. To deserve and earn my desired income of rupees. आप अपना वो मैजिक नंबर लिखिएगा, आप जो आज के डेट में है और आप जो अचीव करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, एंड अगेन, अभी आज के डेट में आपका 1 लाख इनकम है तो उसको 5 लाख मत लिख दीजिए, 10 लाख मत लिख दीजिए। आज के डेट में जो इनकम है ना, उसका आप 1.25 और 1.5 टाइम बढ़ाइए, ठीक है। मिनिमम साइड में आप 6 मंथ लिख सकते हैं, 3 मंथ नहीं, 6 मंथ लिखिए, 9 मंथ लिखिए, 1 ईयर लिखिए, टाइम आप डिसाइड कीजिए। बट जो इनकम जो होना चाहिए, इट शुड बी 1.25 टाइम्स और 1.5 टाइम्स। सो 1 लाख है तो लिखिए 1.5 लाख, लाइक दैट, इन दैट वे। उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि एक जो है समथिंग अनवांटेड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो होगा, जिसको कि आपका माइंड भी अरे ये कैसे होगा, क्वेश्चन कर रहा है, आप लिख रहे हैं और लिखते साथ आपको क्वेश्चन आ रहा, तो वो डाउट से ही चीजें स्टार्ट होती, ठीक है। बट व्हेन यू राइट 1.25 टाइम्स टू 1.5 टाइम्स, माइंड विल से यस, दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है, ठीक है। सिर्फ बोलने के लिए आप 10 टाइम लिख दिए, लेकिन वो मैच ही नहीं कर रहा, आपका माइंड ही, फॉरगेट अबाउट यूनिवर्स, आपका माइंड ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वहां पे चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। सर अगर माइंड एक्सेप्ट करता है तो? माइंड एक्सेप्ट करता है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपका ही एग्जांपल देता हूँ। हाँ, आपने लिखा था कि बाय द एंड ऑफ 2022, दिसंबर 2022, करेक्ट, आपने 1 करोड़ कुछ लिखा था। एंड उस वक्त आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा था कि नहीं, बट यू हैव अचीव्ड इट ऑलरेडी ऑलमोस्ट। यस, ठीक है। नहीं, वो उस समय मुझे ये चीज नहीं पता था, फ्रेंकली स्पीकिंग, बट मैंने वो लिखना चालू कर दिया था, ठीक है। लेकिन इट्स गुड टू राइट 1.25 टाइम्स, एंड इसके पीछे लॉजिक भी ये है, ये लॉजिक मुझे रिसेंटली पता चला, इसलिए मैं उस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग एंड मेकिंग मी टू डिजर्व एंड अर्न माई डिजायर्ड इनकम ऑफ रुपीज dash per month consistently on total auto mode by doing what I love, by doing what I love,
that is educate, inspire and empower people educate, inspire and empower people to live their desired life, by helping them to plan, and manage their money efficiently and effectively through our scientific money management process. सर फिर से बोले, their money effectively, efficiently. Their money efficiently and effectively. Yes. Through our scientific money management process. Well, ये मेरा स्टेटमेंट है जो कि मैं रोज लिखता हूं, ठीक है। आपको अपना स्टेटमेंट अगर बनाना है तो यहां तक तो सेम रहेगा, दैट इज I am happy and grateful to God and universe for blessing and making me to deserve and earn my desired income goal of rupees per month consistently on total auto mode by doing what I love. यहां तक तो एग्जैक्टली सेम रहेगा। नाउ मेरा काम है कि मैं ट्रेनिंग में हूँ, लोगों को एजुकेट करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ एंड उनको फिनेंशियली जो भी है उनका प्लानिंग करने में, मैनेज करने में मदद करता हूँ, ठीक है। सो आप दैट इज करके आप किस रूट से इस गोल को अचीव करना चाहते हैं आप उसको लिख सकते हैं, बाय डूइंग सो एंड सो। राइट, आप इस चीज को, इस एक्सरसाइज को 21 डेज, आप पहला 21 डेज करके देख लीजिए, शायद इन 21 डेज पे ही आपको ब्रेक थ्रू मिल जाएगा फॉर श्योर। एंड आगे का जर्नी तो जो रहेगा सो रहेगा। जैसे जो आपने ये बोला अभी, ये पूरा पैराग्राफ, इसको 21 डेज तक लिखना है डेली? हाँ, इसको लिखना है। आपका जो इनकम गोल है इसको डेली लिखना है, डेली लिखना है। और 21 डेज या जब तक आपका अचीव नहीं होता तब तक? नहीं, 21 डेज में मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको 21 डेज के दौरान ही कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। बाकी इसको लिखना तो लाइफ लॉन्ग है। अभी जैसे कि मान लीजिए अभी आपकी इनकम 1 लाख है, आपने 1.5 लाख का लिमिट बनाया 6 महीना में, 6 महीना में वो टारगेट अचीव भी हो गया, तो अभी फिर उसको रिवाइज कीजिए। 1.5 लाख के बदले में फिर आप उसको 2.5 लाख करिएगा या 3 लाख करिएगा, लाइक दैट। एंड फिर वो ऑनगोइंग प्रोसेस में लिखने का, ठीक है। ये मैं आपको वेल्थ के बारे में बताया। सेम चीज आप अपने हेल्थ को लेकर भी लिखना चालू कीजिए। और एक ओवरऑल नेटवर्थ के लिए अगर आपको लिखना है वेल्थ गोल, दिस इज इनकम गोल बाय द वे। वेल्थ गोल इज समथिंग, आप अपना नेटवर्थ क्या देखना चाहते हैं, दैट शुड बी योर लॉन्ग टर्म गोल्स। वो मैं किसी और दिन बताऊंगा, आज यहीं पे रखते हैं। फिलहाल हम लोग इनकम पे बात कर रहे हैं। सो इनकम को ध्यान में रखते हुए आप ये लिखना चालू करें। सो मैं चाहूंगा कि कोई एक पढ़े आपने क्या लिखा। कामना मैम आप पढ़िए। Yeah, my inspiring income, my inspiring income goal, वो जो है उसका heading, I am happy and grateful to God and universe for blessing and making me to deserve
and earn my desired income of rupees such and such per month consistently on total auto mode by doing what I love. That is, अब वो जो नीचे आपने लिखा है, educate, inspire and empower people to live their desired life by helping them to plan and manage their money efficiently, effectively through our scientific money managing process. Money management process. Money management process. Yes. Okay. Yes. ठीक है. Yeah. So इसको आपको रोज लिखने का है. दैट इज के बाद अगर आपको अपना कोई स्टेटमेंट डालना है, बिकॉज आप लोगों का सबका अपना अपना प्रोफेशन है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकते हैं. उसको आप चेंज कर लीजिएगा कि क्या करके ये कमाना चाहते हैं आप अपने बिजनेस के जरिए, जॉब के जरिए. बिजनेस में करते हैं तो क्या करते हैं. सो यू नीड टू राइट इट. ठीक है. आप चाहे तो वो स्टेटमेंट बना के एक बार मेरे साथ शेयर कर लीजिए. तो अगर कुछ चेंजेस और वो सब करना होगा तो हम लोग वर्कआउट कर लेंगे. एंड स्टार्ट राइटिंग. ठीक है. सो बाय डूइंग सो, फॉर दिस सर, और वन डाउट सर, फॉर दिस डू वी हैव separate notebook or daily affirmation we are writing that in the top page? सो वो जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, अगर आपने वो बुकलेट बना लिया है, बाइंडिंग कर लिया है, बैक साइड में अगर आपका स्पेस है ना, बैक साइड में स्पेस है तो उसमें लिखिए, कोई दिक्कत नहीं. यू कैन राइट इट उसमें. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. यस. और इन द टॉप इटसेल्फ शुड आई राइट? टॉप में जगह कहाँ है? टॉप में तो जगह ही नहीं है. अच्छा, इतना लंबा वहां पे आएगा? आई डोंट थिंक सो. या. सो so that's the learnings for the day. That's the input I wanted to give. I'm sure आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी मिला होगा आपके सेशन के बाद से. ठीक है. तो अब इसमें कोई डाउट मत रखिए. दिस इज साइंस. एंड अभी तक का आप जो भी एक्शन ले रहे थे अपने रिजल्ट्स को पाने के लिए, बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज आप देखिएगा आप में बदलाव आएगा. आप खुद फील करिएगा आपके एक्टिविटीज, आपके एक्शंस. ठीक है. आपका इंटेंशन में चूंकि क्लैरिटी ऐसे ही आ जाएगा वो सारे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद. यू विल बी मोर फोकस्ड एंड यू विल बी एनर्जेटिक ऑल द टाइम, especially when you are in action, when you are at your workplace or throughout day. ठीक है. So that you can see and result तो मिलना ही. ठीक है.